Hello everyone, this side Preet Kamal. I'm a lecturer at Mahichan Polytechnic College, Jalandhar. Today I'm here to discuss with you the subject details of computer programming using C language. But before starting with the subject details, I would like to share with you an important information that is related to the Mission Fateh, a campaign run by the government of Punjab. Says that we should wash our hands regularly, use sanitizer, wear mask, and maintain the social distancing rules so that we could come out of this pandemic situation of COVID-19 by taking these small precautions, right? So let's move on quickly to the topic of today. Today I will be discussing with you the secondary data types. As in the previous lecture we discussed about previous lectures, we have discussed about the primary data types and the input output statements, that how they are being utilized. So now I will discuss about the secondary data types that we will discuss in detail in future whenever there are chapters we are having related to these secondary data types. But for now there will be a quick information about all these secondary data types. So there are three types of secondary data types. First one is array, second one is structure, and the second one is the pointer, and the third one is the function, right? So what do you mean by array? If you have ever come across if you have ever listened to this word array, so you must have known that array means the group of similar elements. Basically, array is a collection of homogeneous values or similar values kind of a data stored in a memory with a common name, right? An example of array could be, say your class, and I want to write the names of all your class members roll number wise. So one thing is, what I have to do is that whether I should use different variables for different persons, right? For example, for roll number 1 I should use variable r1, then r2, r3, r4, r5, r6, something like this. Or the another way is to use array, because array helps us to make a homogeneous element or the collection of that data combinedly, right? So array is basically a function in C. So in array, how I can define it? Like I can define it, say your class is having, for example, 20 students, right? So what I will write here, I will write int r20, right? So that will automatically generate 20 members from me from 0 to 19. Then what I have to do is I just have to put on the names in between that array, and it will automatically allot them to different variables, and it will take a space in the memory itself, taking 40 bytes of memory, right? How 40 bytes? Because integer takes 2 bytes. Integer, I have already told you that integer, the size of the integer variable is 2 bytes in size, right? 2 bytes of memory it takes. And if I will be taking 20 integers in combination, then how much bytes it will take? Obviously 2 into 20, that become 40 bytes. Okay, तो 40 बाइट साइज जो है वो बन जाएगा एरे का. तो हम देखते हैं कि यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है. दे हैव टोल्ड यू दैट एरे फंक्शंस इन सी इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. वो डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है जो क्या करता है, विच होल्ड्स मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप. सिमिलर डेटा टाइप के बहुत सारे एलिमेंट्स को इकट्ठे एक जगह पे अगर आपने स्टोर करना है तो आप एरे को यूज कर सकते हो. ठीक है, तो जो साइज है एरे का वो फिक्स्ड होता है डिपेंडिंग अपॉन द कौन सा आप वेरिएबल डेटा टाइप कौन सी आप यूज कर रहे हो. उसके साथ इंटीजर यूज कर रहे हो, कैरेक्टर कर रहे हो, फ्लोट कर रहे हो, तो फ्लोट 4 बाइट्स का होता है, कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, और आपका इंटीजर जो है वो 2 बाइट्स का होता है. तो डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा ले रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली जो एरे का साइज है वो फिक्स हो जाएगा. तो अगर आपने लिख दिया एरे 10 से कैरेक्टर एरे 10, तो इट विल टेक 10 बाइट्स. ठीक है, आपने मानो लिख दिया फ्लोट एरे 5, तो इट विल टेक 20 बाइट्स. ठीक है, 4 into 5 20 बाइट्स. क्लियर?
सो एंड द एलिमेंट्स आर कलेक्टेड इन अ सीक्वेंशियल मैनर। तो ये चीज भी है कि जो एलिमेंट्स हैं जो कलेक्ट होंगे वो एक सीक्वेंस में होंगे। मान लो मैंने लिखा R20 जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें मैं सबसे पहले लिख रही हूँ अजय, फिर मैं लिख रही हूँ करण, प्रिंस एंड ऑल जो भी नाम है आप लोगों के सबके, ठीक है। तो वो क्या होगा, R0 जो है उसमें आ जाएगा अजय, ठीक है। R1 जो है उसमें आ जाएगा करण, R2 जो है उसमें आ जाएगा प्रिंस, ठीक है। तो इस तरह से सो ऑन, वो सीक्वेंस में, मैं जिस सीक्वेंस में नाम लिखूंगी वो उसी सीक्वेंस में उस वेरिएबल में ऑटोमेटिकली स्टोर होते चले जाएंगे। बस ये चीज ध्यान में रखनी है, जो भी आपका वेरिएबल, जो भी आपका नाम या जो भी आप यूज कर रहे हो, उस चीज का नंबर यूज कर रहे हो या नाम यूज कर रहे हो, जो भी नंबर 1 पे होगा वो एलिमेंट नंबर 0 में सेव होगा, n-1 में सेव होगा, ठीक है। जो भी क्योंकि जो एरे है वो 0 से स्टार्ट होता है, राइट। तो मैंने अगर जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल देखो, इंट एरे, यहाँ पे इसने ब्रैकेट्स को, स्क्वायर ब्रैकेट्स को खाली छोड़ दिया है, तो एरे का जो भी नाम होगा उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगी और उसके अंदर हम नंबर डालेंगे कि वो कितनी दूर तक जा सकता है, ठीक है, कितना उसका लेंथ जो है वो होगी, वो हम यहाँ पे नंबर डाल के उसको डिसाइड कर देंगे। बट इन केस अगर आप लोगों को लेंथ नहीं पता है एरे की, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आप अपना एड्रेस एंटर करो, तो उसके लिए आप एरे बना रहे हो, तो यू डोंट नो कि किसी का एड्रेस लंबा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है, तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, उसमें आप ब्रैकेट्स को खाली छोड़ सकते हो। तो खाली छोड़ के वो क्या होगा कि जितने भी उसमें वैल्यूज एंटर करेंगी, जितने भी उसमें डेटा एंटर करेगा, वो सारा डेटा जो है आप लोगों का वो एज इट इज उसमें स्टोर हो जाएगा, और जितना भी वो डेटा होगा, जितनी उसकी लेंथ होगी, उसके अकॉर्डिंगली एरे जो है वो ऑटोमेटिकली उस डेटा को पिक कर लेगा, ऑटोमेटिकली उस नंबर को पिक कर लेगा और उससे ज्यादा मेमोरी जो है बाइट्स वो नहीं लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एरे जो है वो वर्क करता है। सो इट इज अ सेकेंडरी डेटा टाइप जो हम लोग यूज करेंगे थोड़ी देर बाद, जब हम लोगों को इस तरह के प्रोग्राम्स, अभी तो आप लोगों को सिंपल प्रोग्राम्स नहीं बनाने आते हैं, हमने स्टार्ट नहीं किया है, राइट। तो जब आप लोगों को सिंपल प्रोग्राम्स बनाने आ जाएंगे, उसके बाद जब हमें इस तरह के प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ेगी, देन वी विल लर्न अबाउट दिस सेकेंडरी, वी विल यूज दिस array in our program. Okay, so here as you can see the output, the array elements are array 0 पे 1, array 1 पे 2, array 2 पे 3, array 3 पे 4 और array 4 पे 5। जैसे इसने यहाँ पे खाली छोड़ दिया था, उसमें कोई वैल्यू नहीं भरी थी, तो इसमें वैल्यू कौन सी आ रही है, 1 2 3 4 5। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, ये 0 से लेके 4 तक जाएगा। तो देखो ये array 0 से array 4 तक जा रहा है, array 0 में 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो -1, क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग सेकेंडरी डेटा टाइप की बात करें, तो सेकेंड वन इज द पॉइंटर्स। पॉइंटर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, जो हम लोग आगे इन फ्यूचर जब इसका चैप्टर आएगा एक पूरा पॉइंटर्स का, तो उसमें वी विल स्टडी इट इन डिटेल। बट फिलहाल जो यहाँ पे पढ़ने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, वो क्या है कि जो पॉइंटर है वो एक ऐसा वेरिएबल है जो डेटा स्टोर नहीं करता, एड्रेस स्टोर करता है। किसी दूसरे डेटा का एड्रेस जो है, जो स्टोर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर बोलते हैं। किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने वाला वेरिएबल कहलाता है पॉइंटर। तो इसे हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, स्टार से, स्टार p, स्टार r, स्टार q, स्टार एनीथिंग इन स्टार यू कैन राइट, ठीक है। तो स्टार के साथ आप जो भी वेरिएबल का नाम a b c जो भी लिखोगे, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंटर। तो उस पॉइंटर के अंदर डेटा नहीं होगा, उस पॉइंटर के अंदर क्या होगा, एम्परसेंट का साइन है, जैसे यहाँ पे लगाया, तो एम्परसेंट यहाँ पे क्या शो कर रहा है, एड्रेस ऑफ। जैसे मैंने स्कैनएफ में बताया था आप लोगों को कि स्कैनएफ में हम लोग जब कंट्रोल स्ट्रिंग लगाते हैं, तो उसके बाद हम लोग एम्परसेंट का यूज करते हैं, राइट। तो वो एम्परसेंट वहां पे क्या बता रहा है, एड्रेस ऑफ। तो उसका एड्रेस बताता है, तो उस वेरिएबल के एड्रेस में जाके आपका डेटा स्टोर हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने लिखा इंट वैर, वेरिएबल, फॉर एग्जांपल वेरिएबल का शॉर्ट फॉर्म लिखा वैर इज इक्वल्स टू 10। तो वैर जो है ये सिंपल वेरिएबल है, इस सिंपल वेरिएबल में आपका जो डेटा स्टोर हो रहा है वो हो रहा है 10, ठीक है। तो 10 जो है वो आपका डेटा स्टोर हो गया
वैर में, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर बना दिया स्टार पी नाम का, तो अब वो स्टार पी है, तो जो पी बन गया स्टार की वजह से वो पी जो है वो पॉइंटर की तरह डिफाइन हो गया हमारे पास, डिक्लेयर कर दिया हम लोगों ने कि ये जो पी है वो पॉइंटर का काम करेगा। अब यहाँ पॉइंटर दोबारा से स्टार लगाने की जरूरत नहीं है, तो अब पी को हम क्या दे रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, इक्वल टू कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, कौन सी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, एम्परसेंट वैर। तो वैर जो वेरिएबल था उसका एड्रेस ऑफ वैर इज बीइंग असाइन्ड टू पी, मतलब पी किसको पॉइंट कर रहा है, एड्रेस ऑफ वैर, वेरिएबल जो आपका वेरिएबल है वैर उसको पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल शो करी हुई है कि मान लो जो P है उसका एड्रेस क्या है C50, वो पॉइंट किसे कर रहा है, C4C नाम के एड्रेस को। वो C4C नाम के एड्रेस में क्या पड़ा हुआ है, 10, जिसका नाम आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए या यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या रखा गया है, वैर, जिसका नाम है वैर, ठीक है। और उसका एड्रेस है ये, और ये जो P नाम का आपका पॉइंटर आपने बनाया है, वेरिएबल जो जिसको आपने पॉइंटर बनाया है, वो इस मेमोरी लोकेशन को, इस एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है, और इसके अंदर वही एड्रेस सेव्ड है जिसको वो पॉइंट आउट कर रहा है। तो अगर हम चाहें तो इस P से डायरेक्टली इसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंडरी डेटा टाइप, राइट। तो इसकी भी जो वैल्यू है, इसके अंदर भी आपके जो नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं वो कितनी आ सकती हैं, 65536, जैसे कि इंटीजर के अंदर थी। तो इतने टोटल नंबर ऑफ 2⁻16 टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस जो हैं वो इसके अंदर आ सकती हैं, क्योंकि जो कंपाइलर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो 16 बिट का कंपाइलर है, राइट। तो नेक्स्ट जो थर्ड आपकी सेकेंडरी डेटा टाइप है वो है फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सी प्रोग्राम के, कि समटाइम्स अगर हमने कोई स्पेसिफिक टास्क, कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है और वो बार बार वही टास्क को हम लोग रिपीट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई एलईडी बल्ब जलाने का कोई प्रोग्राम बनाना है और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो एलईडी जले वो जले जगबुझ इस तरह से जले। तो अदरवाइज हमें अगर इस तरह से जलाना है, तो अगर हम डायरेक्टली उसको 1010 प्रोवाइड कर देंगे तो वो ये ब्लिंकिंग उसकी नज़र नहीं आएगी, बहुत फास्ट ब्लिंकिंग होती है। तो हमने क्या किया, उसमें डिले इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो अब वो डिले कितनी बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं 4 बार उसको ब्लिंक करवाना चाहती हूँ, तो मैं 4 बार डिले इंट्रोड्यूस करूंगी, तो चारों बार मुझे डिले का प्रोग्राम मेन फंक्शन में लिखना पड़ेगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, कि एक चीज़ अगर एक से ज़्यादा बार हमारे प्रोग्राम में यूज़ हो रही है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं। कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जैसे कि लाइब्रेरी फंक्शन, कुछ यूजर डिफाइंड होते हैं। यूजर डिफाइंड जो यूजर की हेल्प के लिए बनाए जाते हैं। तो वो यूजर डिफाइंड फंक्शन, मान लो मैंने डिले का बना लिया, और जब भी मुझे वहां पे डिले चाहिए, एलईडी को ब्लिंक करवाना है, उस टाइम पे क्या मैं करूंगी, उस डिले फंक्शन को कॉल करूंगी, वो डिले फंक्शन आएगा, वर्क करेगा, वापस चला जाएगा, फिर नेक्स्ट आपका जो ब्लिंक है वो हो जाएगा। मतलब एक बार वो टर्न ऑन हो गया, ठीक है, फिर डिले फंक्शन आया, उतनी देर के लिए वो टर्न ऑन रहा जितनी देर डिले फंक्शन काम कर रहा है, फिर वो ऑफ हो गया, फिर दोबारा से डिले फंक्शन को बुलाया, फिर दोबारा से उसने काम किया, उतनी देर तक ऑफ रहा, फिर दोबारा से ऑन हो गया। इस तरह से आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन, दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। तो इस तरह से आप लोग यूज कर सकते हो। तो फंक्शंस जो हैं वो प्री डिफाइंड भी होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि लाइब्रेरी फंक्शंस है हमारे, हेडर फाइल्स है हमारी, वो प्री डिफाइंड है, उसके अंदर जो सब कुछ है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, वो किसी डेटा टाइप के अंदर नहीं आता। लेकिन जब हम अलग से यूजर डिफाइंड, अपने बेनिफिट के लिए, अपनी सहूलियत के लिए, जब हम कोई भी फंक्शंस को इंक्लूड करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, तो नेक्स्ट वन आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास 3 तरह की डेटा टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और यूजर डिफाइंड। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी हमारी हो गई, लास्ट वन बची यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में हमारे पास 3 तरह की डेटा टाइप्स आती हैं, स्ट्रक्चर, यूनियन और एन्यूमरेटेड। तो स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, एक ऐसी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि डिफरेंट डेटा टाइप्स के कंपोनेंट्स को कंबाइन कर सकती है। जैसे हमने एरे किया, तो एरे में क्या था, ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। तो जो ये स्ट्रक्चर है और जो यूनियन है, ये दोनों एक ही तरीके के हैं। ठीक है, सिर्फ स्लाइड सा डिफरेंस है, दैट आई विल टेल यू लेटर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर और यूनियन, ये दोनों जो हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, जो यूजर के
सहूलियत के हिसाब से बनाई गई हैं, उसके नीड के हिसाब से डिज़ाइन की गई हैं। और जैसे एरे में ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स होता था, वैसे स्ट्रक्चर और यूनियन में ग्रुप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो होता है। मतलब इसमें हम आप ग्रुप बना सकते हैं अलग तरह के एलिमेंट्स, अलग तरह के एलिमेंट्स मतलब अलग तरह की डेटा टाइप्स का ग्रुप बना के उसको एक डेटा टाइप का नाम दे सकते हैं। मतलब हम अपनी खुद की डेटा टाइप को डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है तो उसका जो स्टेटमेंट है, जो उसका हम जो यूज करते हैं कीवर्ड, उसका कीवर्ड का नाम है स्ट्रक्ट, STRUCT, स्ट्रक्ट। ठीक है, स्ट्रक्ट स्टेटमेंट जो है वो उसका डेटा टाइप का नाम जो है स्ट्रक्चर का, वो हम लोग कीवर्ड जो यूज करते हैं वो स्ट्रक्चर का स्ट्रक्ट यूज करते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्ट का ये सिंटेक्स देखिए आप ध्यान से। सिंटेक्स में क्या हो रहा है, स्ट्रक्ट लिखा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में यहाँ पे लिखा क्या, स्ट्रक्चर का नाम, जो भी आप उस अपने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का नाम रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्ट का नाम रख दिया। स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं नाम लिखना, ये स्क्वायर ब्रैकेट सिर्फ स्ट्रक्चर नेम को अलग से दिखाने के लिए लगाई गई है। आपने डायरेक्टली लिखना है स्ट्रक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा बुक। अगर मैं कोई बुक नाम की डेटा टाइप बनाना चाहती हूँ अपने हिसाब से, डेटा टाइप मीन्स जैसे हमारी इंटीजर है, करेक्टर है, फ्लोट है, वैसे मैं अपने नीड के अकॉर्डिंगली एक डेटा टाइप डिजाइन करना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा स्ट्रक्ट बुक। स्ट्रक्चर का जो भी मैं नाम है, बुक या कुछ भी जो भी आप लिखना चाहते हो, स्टूडेंट लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। देन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस के बाद मेंबर डेफिनेशंस 1 2 सो ऑन, आपको जितनी भी आप करना चाहते हो, ठीक है। और हर एक मेंबर डेफिनेशन के बाद सेमीकोलन, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज और उसके बाद फिर से सेमीकोलन। तो ये सेमीकोलन जो एंड में है ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये स्ट्रक्चर डेटा टाइप के साथ इसने यूज होना है, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ मेंबर डेफिनेशन का क्या मतलब है। मेंबर डेफिनेशन का मतलब है कि आपने जो भी आपकी स्ट्रक्चर आप बनाना चाहते हो उसमें कौन कौन से मेंबर्स का नाम, आप कौन कौन से मेंबर्स उसमें डालना चाहते हो। एग्जाम्पल देती हूँ, क्लियर होगा आप लोगों को। मैंने एग्जाम्पल लिया स्ट्रक्ट बुक, तो अब मैं एक बुक नाम की डेटा टाइप अपनी मैंने डिजाइन करनी है। उसमें मैं डालना क्या क्या चाहती हूँ, मैं डालना चाहती हूँ बुक का नाम, और मैं डालना चाहती हूँ बुक का के पेज नंबर्स, कितने पेजेस हैं, नंबर ऑफ पेजेस ऑफ द बुक। तीसरा मैं डालना चाहती हूँ बुक का प्राइस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 3 चीजें मैं डालना चाहती हूँ। तो अब आप बताइए, ध्यान से बताइए कि अगर मुझे नाम डालना है तो मुझे कैरेक्टर डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा क्योंकि नाम है कैरेक्टर्स में होगा, अल्फाबेट्स में होगा, किसी भी बुक का नाम होगा, ठीक है। दूसरा आ गया नंबर ऑफ पेजेस। तो जो नंबर ऑफ पेजेस है वो ऑब्वियसली इंटीजर में होंगे, 100 200 300 कुछ भी नंबर ऑफ पेजेस होंगे, 250 240 इंटीजर्स होगा, कोई डेसिमल नंबर नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं बात कर रही हूँ प्राइस की, राइट, तो प्राइस कुड बी इन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, डेसिमल्स में हो सकता है। समटाइम्स किसी बुक का प्राइस होता है 150.50, राइट, और 235.75 समथिंग लाइक दैट, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने हिसाब से एक बुक नाम का स्ट्रक्चर बनाया, बुक नाम का डेटा टाइप बनाया, जिसके अंदर मैंने अलग अलग जो आपके डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, इन सबको इनकॉर्पोरेट किया, इन सबको कंबाइन किया, उन सबकी, इसको बोलते हैं मेंबर डेफिनेशन। तो पहले मेंबर डेफिनेशन क्या होगी, इंटीजर, इंटीजर से पेजेस, दूसरी हो गई फ्लोट से प्राइस ना, तीसरी हो गई कैरेक्टर से नेम ऑफ द बुक, या कुछ भी जो भी आप वेरिएबल्स लगाना चाहते हो साथ में, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो है वो बनता है। तो इस तरह से आपका जो डेटा टाइप है ये बनता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आप जितने भी आप वेरिएबल, जितने भी आप डेटा टाइप्स यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली जो स्ट्रक्चर है आपका वो उतने ही मेमोरी साइज उतना ही वो लेता है, ठीक है। तो जैसे आपने यूज किया फ्लोट, इंटीजर और कैरेक्टर, तीनों चीजें यूज की, तो फ्लोट का साइज हो गया 4 बाइट्स, इंटीजर का हो गया 2 और इसका हो गया, कैरेक्टर का हो गया 1। तो टोटल 7 बाइट्स का आपका ये डेटा टाइप्स जो है वो बन गया, ठीक है। तो बाकी आप जितने उसमें वेरिएबल्स डालोगे उसका अलग से।
क्लियर। सो नेक्स्ट इज यूनियन। ये भी बिल्कुल सेम है स्ट्रक्चर की तरह, सिर्फ डिफरेंस क्या है इसके अंदर कि यूनियन का सिर्फ एक इसका कीवर्ड डिफरेंस है। पहली बात, पहला डिफरेंस जो है वो कीवर्ड का डिफरेंस है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनियन, यूनियन नेम एज इट इज, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, मेंबर डेफिनेशन, सारा कुछ बिल्कुल सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है इसके अंदर कि इसमें जो आपका साइज है टोटल आपकी डेटा टाइप का, जो आपने यूनियन नाम का अपना यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया, उसका जो आपका डिफरेंस क्या है कि उसका जो साइज है वो डिपेंड करेगा मैक्सिमम साइज के ऊपर। ठीक है, तो जैसे स्ट्रक्चर के अंदर फ्लोट, कैरेक्टर और इंटीजर हम यूज कर रहे थे, तो टोटल 7 बाइट्स का साइज जो था वो ले रहा था और उसमें सबको अलग अलग स्पेस प्रोवाइड हो रही थी, सबको अलग अलग तरीके से हैंडल किया जा रहा था। यूनियन में क्या है, अगर यही सेम एग्जांपल मैं यूनियन में यूज करूं तो क्या होगा, यहाँ पे फ्लोट, कैरेक्टर और इंटीजर, इन तीनों में से सबसे हाईएस्ट साइज किसका है, फ्लोट का। ठीक है, तो फ्लोट का साइज कितना है, 4 बाइट्स। ठीक है, तो ये जो यूनियन है ये मैक्सिमम जो भी डेटा टाइप होती है उसका साइज जो है वो एक्वायर करता है। अगर मान लो इसमें 2 बार इंटीजर, 2 बार कैरेक्टर यूज किया हो तो वो ये यूनियन जो है वो मैक्सिमम 2 बाइट्स की बनेगी। ठीक है, इसमें फ्लोट यूज कर रहे हैं तो वो 4 बाइट्स की बनेगी। अगर सिर्फ कैरेक्टर यूज कर रहे हैं तो इट विल टेक ओनली 1 बाइट। तो एक तरह से तो ये बेनिफिट है कि मेमोरी जो है वो बच रही है, लेकिन दूसरी तरफ से नुकसान इस बात का है कि अगर हमें 2 वेरिएबल्स को इकट्ठे वर्क करवाना है, ठीक है, एक फ्लोट को और एक इंटीजर को, या एक इंटीजर को एक कैरेक्टर को, तो there will be a clash because of the memory space size जो उसने लिया है। तो 4 बाइट्स का है तो उसमें एक टाइम पे एक ही वेरिएबल वर्क कर सकता है। तो अगर मैं फ्लोट यूज करवाना चाहती हूँ, फ्लोट वेरिएबल के साथ कुछ काम करना चाहती हूँ, तो वो फ्लोट ही यूज होगा, आपका कैरेक्टर और इंटीजर बीच में यूज नहीं हो सकता। दिस इज द प्रॉब्लम विद द यूनियन। एंड लास्ट जो डेटा टाइप है हमारी, दैट इज एन्यूमरेटेड डेटा टाइप। ठीक है, एन्यूमरेटेड डेटा टाइप ये भी एक स्पेशल, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा टाइप है हमारी, जिसमें हम अपनी खुद की डेटा टाइप को क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ट्रैफिक लाइट्स हैं हमारी, ठीक है, तो ट्रैफिक लाइट्स हैं या प्राइमरी कलर्स हैं, जैसे यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल ली है, प्राइमरी कलर्स की एग्जांपल ली है। तो दिस इज से प्राइमरी कलर्स, एन्यूमरेटेड प्राइमरी कलर उन्होंने अपनी डेटा टाइप बना ली। ठीक है, तो रेड, येलो और ब्लू से दीज आर द प्राइमरी कलर्स। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, जो भी उनको वैल्यूज असाइन करी जा रही हैं, पॉसिबल वैल्यूज जो भी उनकी हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये अपना वर्क जो है उसको so let's take another example of enumerated data type. For example, हम एक enumerated data type बना रहे हैं days की। ठीक है, तो हमारे पास 7 days हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सारे अप टू सैटरडे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया, enumerated data type बनाई, जैसे हम स्ट्रक्चर और यूनियन में बना रहे थे, उसका नाम रखा days। तो days के आगे मैंने एक वेरिएबल लिख दिया the day। ठीक है, तो वो वेरिएबल का नाम है जो डेज टाइप का है। उसके साथ में मैंने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेरिएबल अलग से लिया जे, जिसकी वैल्यू इनिशियली है 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ printf में कि प्लीज एंटर द डे ऑफ द वीक, कि आज जो भी डे है वो डे आप एंटर करो, कि 0th डे है या 0, 1, 2, 3 अप टू 6 कौन सा डे है। ठीक है, 0 to 6 मतलब टोटल 7 डेज हो गए। ठीक है, तो जो भी उसने यहाँ पे मैंने स्कैन एफ कराया, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था। स्कैन एफ में क्या करते हैं हम, स्कैन करते हैं जो डेटा आपका यूजर प्रोवाइड कर रहा है, उस डेटा को हम रिसीव करते हैं, लेते हैं अपने अंदर, राइट। ठीक है, तो ये स्कैन एफ हो गया %d, $, $j का मतलब जे, जहां पे भी जे का एड्रेस ऑफ जे। ठीक है, एड्रेस ऑफ जे में जाके आपने जो भी डेज ऑफ द वीक 0 से 6 में जो भी आपने नंबर एंटर किया है वो जे में सेव हो जाएगा। और हम डिस्प्ले क्या करेंगे अब, द डे में, द डे जो हमने डेज नाम का जो अपना एन्यूमरेटेड डेटा टाइप बनाया था, उसका वेरिएबल का नाम था द डे। अब उस द डे में हम सेव क्या कर रहे हैं, डेज जे, मतलब आपने जो भी नंबर, मान लो फॉर एग्जांपल आज है से वेंसडे, फॉर एग्जांपल आज है वेंसडे। ठीक है, तो वेंसडे मतलब 0, 1, 2, 3। ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तो 3। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी जे में मैं एंटर किया मैंने 3, तो डेज 3 जो है
वो कहाँ पे चला जाएगा, द डे नाम का जो वेरिएबल है उसमें चला जाएगा। तो फिर जब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करके द डे को प्रिंट करूंगी तो इट विल शो मी वेंसडे, तो यहाँ पे वो वेंसडे शो करेगा। तो दिस मीन्स इस तरह से हम लोग अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से, जो प्रोग्रामर है वो किसी भी तरीके से आपका जो प्रोग्राम है, जो डेटा टाइप है, आपको मतलब सी लैंग्वेज में इतनी ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास कि आप अपने हिसाब से कुछ भी किसी भी तरीके से क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो उसको, राइट। तो कोई भी डेटा टाइप्स आप बना सकते हो, आप सिमिलर एलिमेंट्स को इकट्ठा कर सकते हो, आप डिफरेंट एलिमेंट्स को इकट्ठा कर सकते हो, आप अपने हिसाब से डेटा टाइप बना सकते हो। आप यहाँ पे ट्रैफिक लाइट सिस्टम बना सकते हो अपने अकॉर्डिंगली कि आपका ट्रैफिक लाइट सिस्टम कब चले, कब बंद हो, एनीथिंग यू कैन मेक इन दिस लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, एंड दिस इज so simple and so interesting that you should all do it. Whenever we will start writing the programs, I will tell you, and I will tell you about the uh, software that which you have to download. So at home you should practice, and as much you will practice, the same you will gain, the same you will get, the same the more you will get the interest in programming. Okay, so that was all for today. So in the end of the video I would like to say that please like my video, comment on it, and must like, so that I could know that whoever who are from you all, whoever has seen my video, and do comment everyone whether you have understood it or not, or whether there is any doubt or any topic that was more clear or any topic that was less clear or anything that you are all having. Please do write in the comment box. Okay, so we will meet in the next lecture, and if there will be any doubts, we will be taking them in the live sessions. Thank you.